गुड मॉर्निंग। जैसा कि सुबह का क्लास में हम लोग फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर के बारे में पढ़े थे जो कि स्टोर ग्रेन को अफेक्ट करता है। अब हम लोग इम्पॉर्टेंट स्टोरेज टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे, मतलब क्या क्या स्टोरेज टेक्निक हम लोग को रिकमेंड किया गया है ग्रेन स्टोरेज और प्रिजर्वेशन के लिए। ठीक है, तो पहला जो है इसमें है प्लास्टिक बैग। प्लास्टिक बैग आर वाइडली यूज फॉर स्टोरेज इन ये इथोपिया का है, लेकिन ये जनरली मैं एग्जांपल दे रही हूँ इंडिया के हिसाब से, क्योंकि इसके और भी कोई मटेरियल नहीं था इस वजह से। Plastic bags are widely used. The product has been dried well because during store, further drying is impossible as there are no air circulation. When plastic bags are closed well, airtight storage result with all its advantage and disadvantage. Plastic bags do not offer much protection against rodents, and they can be pierced by sharp sheet during transport and penetrated by insect. This can be reduced by putting bag tightly when coated inside the plastic bag. Plastic bag become the weak or brittle after continuation exposed to the sun. तो ब्रिटल हो जाता है, कड़ा हो जाता है जब ये सन को। एडवांटेज है कि ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें क्या क्या दिख रहा है सब कुछ देख सकते हैं। फर्टिलाइजर कैन नॉट बी यूज फॉर प्लास्टिक, तो पहला है प्लास्टिक। अगर इसका डिसएडवांटेज है कि ये ज्यादा यूज करते करते ब्रिटल हो जाता है, और अगर एडवांटेज बोला जाए तो ये ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर कुछ भी हम लोग इजीली देख सकते हैं। उसके बाद है 45 gallon metal drum. Small drum or water tank are often available and can be used to storing drum. Gallon metal drum हम लोग देखते हैं, tightly closed drum use करते हैं, ठीक है। और ये क्या है, when being used for storage they should not be placed in full sunlight but protected preferably under a good roof condition. फिर उसके बाद है द पूसा बीन। इंडियन पूसा बीन इज इसेंशियल स्क्वायर डबल वाल सिलो। सिलो का मतलब होता है लेयर, ठीक है। तो बोथ द फ्लोर एंड द रूफ स्ट्रक्चर आर ऑल्सो डबल वाल। द स्पेस बिटवीन द टू वाल कंटेन लेयर ऑफ प्लास्टिक सीटिंग। दो लेयर के बीच में प्लास्टिक टू मिनिमाइज द पासेज ऑफ वाटर। तो दोनों लेयर के बीच में ताकि passage of water in this store, providing the filling and impeding of the opening as well closed. The store is extremely well sealed. In general, the wall are made from mud block, but they can be made using mixture and mud. तो wall जो है क्या होता है, mud block से can be made using the mixture of mud mixed with small amount 10% सीमेंट और मेड फ्रॉम फायर ब्रिक। तो कैसा है, स्क्वायर शेप है, दो सिलो, बीच में प्लास्टिक लेयरिंग किया गया है, मड और सीमेंट का सीलिंग है, और उसके बीच वाटर पासेज का ये रहता है, ठीक है। ये है पूसा बिन। फिर मेटल सिलो आर सुटेबल फॉर सीरियल पल्स एंड द होल रेंज ऑफ स्मॉल मेटल सिलो डिजाइन एग्जिट विथ सिलो कैपेसिटी 5 टन। 5 टन का कैपेसिटी है। सम स्किल इन वेल्डिंग is required to make the structure airtight. Silo can be made with overlapping sheet bolted or riveted together. The silo has two opening, one for filling the top और one impeding करके, ठीक है। मेटल ड्रम और मेटल सिलो should be placed in full sunlight but sheltered to prevent dramatic temperature. Some small silo design incorporate ventilation system operated by natural airflow. Rotating fan-like structure placed on the top of the silo or flap are open grain ventilated for fresh cool. The brick and ferro cement silo of this type are suitable for use in dry and wet tropical area, but they should be protected from rain by roof, ठीक है। और द बेस शुड बी मेड ऑफ reinforced concrete or fired brick. These silo are comparatively airtight or watertight, particularly when painted with rubber-based paint. Coal tar. A whole range of size and style are possible. The common types of brick, cement, steel, and ferro cement. The brick silo क्या है, suitable for both cereal pulse and the silo is made from brick placed on reinforced foundation and covered by concrete
plate with a main hole for filling the empty brick soil. The cement step silo है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद स्टोरेज इन वेंटिलेटेड हट मीन्स एक झोपड़ा जैसा रहता है जिसमें गुड वेंटिलेशन टू प्रिवेंट फंगल ग्रोथ एंड रोटिंग, एज दिस मेथड ऑफर हार्डली प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंसेक्ट, पर इट इज लेस सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद है इम्प्रूव्ड पिट स्टोरेज, जिसमें रूफिंग ऑफ ए पिट कैन बी मेड of metal sheet sealed with mud, dung and bitumen or polythene sheet. A temporary shelter over the pit sheet give protection from rain but should be removed the dry season to ensure drying by evaporation, because the shelter does not prevent later movement. So pit lining, roofing, after coating the wall with mud, dung, the product put into well sealed plastic bag which are placed in the pit, and this allow part of the product plastic lining in the pit, फेरो सीमेंट लाइनिंग, इस तरह से पिट होना चाहिए। अल्टरनेटिव एंड सप्लीमेंट्री कंट्रोल मेजर्स में फिजिकल मेजर्स आ गया, ठीक है, और उसके बाद है ट्रेडिशनल ग्रेन प्रोटेक्टेंट आ गया, मॉडर्न बायोलॉजिकल मेथड आ गया, उसके बाद है करंट पॉसिबल फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इतना नहीं, हम लोग को ये देखेंगे कि फिजिकल मेथड में क्या है, इफेक्टिव वेरियस फिजिकल फैक्टर में क्या है, क्लीनिंग एंड ड्राइंग एंड ग्रेन स्टोरेज है, ठीक है। प्रैक्टिकल इसमें क्या है, टेक्निक फॉर डैम्प ग्रेन हर्मेटिक कंडीशन, तो डेवलपमेंट ऑफ टेम्पोररी स्टोरेज प्रोसीजर, ठीक है। तो ये अलग अलग फिजिकल मेजर्स क्या क्या आ रहे हैं उसके बारे में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद है एयरेशन कूलिंग, ये उतना देखने का ज़्यादा है ट्रेडिशनल। तो अभी हम लोग जो देखें स्टोरेज स्ट्रक्चर, ठीक है। स्टोरेज स्ट्रक्चर में हम लोग क्या क्या देखें, पहला देखें हम लोग प्लास्टिक बैग, दूसरा देखें हम लोग गैलन मेटल ड्रम, पूसा बीन, मेटल सिलो, द ब्रिक एंड फेरो सीमेंट सिलो, और स्टोरेज इन वेंटिलेटेड हट और इम्प्रूव पिट स्टोरेज, ठीक है। तो ये हो गया तुम लोग का डिफरेंट स्टोरेज स्ट्रक्चर। अगर इन स्टोरेज स्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर तुम लोग को कोई डाउट है तो फोरम में अभी हम लोग करेंगे, और यही है। तो आज हम लोग 2 लेक्चर हम लोग डिस्कस किए हैं। पहला तो है फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर जो कि स्टोर ग्रेन को इन्फेस्ट करता है, और दूसरा हम लोग का है कि डिफरेंट स्टोरेज स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके देन, थैंक यू।